Okay, students. So endocrinology. We'll be dealing with the endocrinology. So what is endocrine system? Can you tell me what is endocrine system? First, you need to know about the endocrine system. Tell me, someone tell me what is endocrine system? So basically endocrine system, it comprises of endocrine glands and their hormones. Okay, so comprises endocrine glands and their hormones, right? Now animals have generally three types of gland. You know that. First one is exocrine, second one endocrine, and third one is heterocrine. These are the different type of glands. Okay, so first, what is exocrine gland? What is exocrine gland, students? Anyone? What is exocrine gland? Do they possess the ducts or not? Not. Yes. Yes. So exocrine glands, they have ducts for discharging their secretion. Okay. Their secretion, right, students? And another thing, you know that, and can you give me some examples of exocrine glands? स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड. सो जनरली जो ग्लैंड है, जो जिससे क्या होता है, एंजाइम सीक्रेट होता है, राइट? तो एंजाइम सीक्रेट होता है, वो ही हो जाएगा, वही उस ग्लैंड को ले लो तो वो हो जाएगा क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, राइट स्टूडेंट्स? तो जैसे हो गया क्या, लीवर, यू आर करेक्ट, सीबेसियस ग्लैंड भी हो जाएगा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड ले लो, ओके, and intestinal gland and others. Okay, now endocrine glands. What is endocrine gland, students? क्या होता है इसमें? डक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नो डक्ट. Lack ducts, right? And they so how they pass the secretion into the surrounding region? Body fluid. Yes, through the blood, right? So they pass secretion into the surrounding body directly via blood, right? And so they, as they lack ducts, they are called ductless gland. Okay, so example क्या हो जाएगा students, इसका बोलो. Pituitary. Exactly, thyroid, pituitary. थायराइड, पिट्यूटरी. बोलो, और कोई है कि नहीं है? थाइमस, एड्रिनल, यस, एड्रिनल पिनियल, ओवरी, टेस्टिस. यस, ओवरी, टेस्टिस. और कुछ? पीनियल ग्लैंड. यस. और एक और होता है स्टूडेंट्स, हेटेरोक्राइन. हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? These consist both endocrine and endocrine. Exactly, very good, Kasis. So heterocrine glands, they consist of both
exocrine as well as endocrine part, right? जैसे हो गया pancreas, pancreas. Okay, so they are also called mixed gland. They are also called mixed gland, right? Now one more thing, who is the father of endocrinology? Father of endocrinology. Thomas Edison. Very good. Okay. तो जैसे मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ये पर्टिकुलर इसका क्या होता है? लूमेन, राइट? दिस इज द डक्ट। ये जो अंदर का पोर्शन लूमेन, ये इसको कहते हैं डक्ट। सो एंड इस सेल से क्या होता है? ये जो सेल्स है, अलग अलग सेल्स है, इस सेल से क्या होता है? सिक्रेटरी मटेरियल इससे रिलीज होता है, राइट? इससे सिक्रेशन होता है। और यहाँ पे होता है क्या स्टूडेंट्स? ब्लड वेसल। इसमें ब्लड वेसल होता है। तो दीज आर द, ये जो ग्लैंड होता है इसको क्या बोलेंगे? ये जो ग्लैंड होता है exocrine gland, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस। और अब देखो एक और ग्लैंड का ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। वो जो फिगर मैंने ड्रॉ किया अभी अभी, वो थोड़ा सा ठीक कर लो, बहुत अच्छा नहीं हुआ। और ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का क्या नाम है? ये क्या, किस टाइप का ग्लैंड है? endocrine, यस, ये एंडोक्राइन, राइट? सो एंड नाउ मोर इनटू द हार्मोन्स। सो हार्मोन है क्या चीज? पहले ये बताओ, हार्मोन है क्या चीज? chemical mediator, Exactly. So hormone is basically a chemical mediator which is produced by the endocrine gland, and they are released into the blood and transported to the distantly located organ, target organ. तो एक जगह से ये रिलीज होता है, देन थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, ये क्या होता है? वो एक टारगेट ऑर्गन। तो एक हार्मोन का टारगेट ऑर्गन, कि ये हर टाइम एक हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है वो बहुत दूर से ही होता है और कभी कभी नज़दीक भी होता है। बोलो। दोनों ही होता है। दोनों ही होता है। जैसे कि एक लोकल हार्मोन जो है, लोकल हार्मोन कुछ हार्मोन्स है जिसका टारगेट ऑर्गन वो खुद ही है, राइट? सो and the first hormone
The first hormone discovered by two English physiologists named Bayliss and Sterling. William Bayliss, William M. Bayliss, and Ernst Sterling discovered hormone in 1903. Okay, a hormone which stimulates another endocrine gland to secrete its hormone is called क्या है? Secret. ये जो या you are correct. They discovered the hormone called secretin. मैं जो डेफिनेशन बोला था वो ट्रॉपिक हार्मोन का एक डेफिनेशन मैं पूछा था ऐसे, ठीक है. तो दे डिस्कवर्ड फर्स्ट हार्मोन दैट इट इज नोन एज secretin, right? And the term hormone, it was secreted, it was coined by Starling in 1905. So it came from word hormone. It means to excite. So the meaning of hormone is actually to excite, or in some books it is written as to arouse, right? To arouse. So यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है, एक जो हार्मोन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, ये सिक्रेटिन फर्स्ट हार्मोन था जो डिस्कवरी किया था. दो साइंटिस्ट उधर था, एम बेलिस एंड ए स्टार्लिंग इन 1903. बट अगर ये क्वेश्चन पूछे कि हार्मोन का टर्म किसने कॉइन किया, तो वो हो जाएगा क्या? स्टार्लिंग, राइट स्टूडेंट, इन 1905. ओके. ओके, सो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. देखो यहाँ पे केमिकल मैसेंजर, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर कितना होता है. देखो एक होता है क्या स्टूडेंट्स, न्यूरो ट्रांसमीटर, राइट. एक होता है न्यूरो ट्रांसमीटर. सो ये न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे काम करता है स्टूडेंट्स? बोलो. साइनेप्स के जरिए. देखो या सो न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम न्यूरॉन्स, किससे? फ्रॉम न्यूरन टू इनटू साइनेप्स जंक्शन. And they act distantly or locally. They act लोकल. yes, locally, right. So दो एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बता दो स्टूडेंट्स. एसिटाइलकोलिन. वेरी गुड. एक और बता दो. गाबा नाम सुने हो क्या? गाबा नाम सुने हो कभी? हाँ. तो वो हो जाएगा. साइनस फिलिंग क्या है? हाँ, NPSE. Synapse. So देखो endocrine hormones, so from specialized gland into blood acts distantly in generally, right? और एक और जो है थर्ड, देखो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स. सम हार्मोन्स they access both the neuroendocrine hormones. ये कैसा है neuroendocrine hormones? Non-epinephrine. So from neuron into the blood, from neuron into the
blood, right? And acts distantly, right students? समझ में आया अब क्या? Yeah, the example you have given is absolutely correct. Now another type of secretion such as paracrines. Paracrines. Paracrine क्या होता है स्टूडेंट्स? From Neighboring cell. cells into interstitial fluid. And ये भी and act locally, right? समझ में आया? बोलो स्टूडेंट्स, बोलो, बताओ। तो अगर पैराक्राइन सिग्नलिंग का बात किया जाए तो हम देखते हैं व्हाट इज जनरली पैराक्राइन। तो पहले ऑटोक्राइन को देखो। ये एक सेल है, राइट? इसमें क्या दिखा रहा है, तुम ही बोलो। ठीक है, ये हो गया क्या? ऑटोक्राइन। So a cell targets itself, right? A cell targets itself. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखो, ये क्या है? ये सिग्नलिंग सेल है और ये होता है टारगेट सेल। लेकिन ये भी देखो कि ये बहुत नज़दीक है, राइट? ये बहुत नज़दीक है। तो इसके थ्रू देखो जंक्शन से ये जुड़ा हुआ है, राइट? गैप जंक्शन से। So signaling across gap junction, right? So a cell which targets the nearby cells. Okay? समझ में आया कि नहीं, बोलो। Yes or no? So last slide में लिखा था पैराक्राइन, and you know that autocrine. What is autocrine? So autocrine from cell into the interstitial fluid. Okay. इसका जो स्पेशलाइजेशन है, एक्ट्स ऑन सेम सेल्स वाया रिसेप्टर। ओके। और ये साइटोकाइन्स एक टाइप का होता है जो सेल टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, बट दे एक्ट ऑन इम्यून सेल्स डिस्टेंटली। दे एक्ट ऑन इम्यून सेल्स डिस्टेंटली, राइट? ओके। तो एक और बात है स्टूडेंट्स, ये हार्मोन, अगर हार्मोन का जो केमिकल नेचर अगर देखा जाए तो कैसे कैसे टाइप का हार्मोन होता है जनरली, इन जनरली। सो केमिकल क्लास ऑफ हार्मोन। एक होता है क्या? ऑफ कोर्स पेप्टाइड्स, राइट स्टूडेंट्स? पेप्टाइड्स, जो पेप्टाइड्स मतलब प्रोटीनेशियस इन नेचर जो हार्मोन है
उसका क्या एग्जाम्पल होगा? इंसुलिन। एब्सोल्युटली। और कुछ है? देखो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वे में इसको डिफरेंशिएशन किया गया है। देखो पूरा का पूरा प्रोटीनेशियस भी बोल सकते हो, और ऐसे करके ऑक्टापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड, नोनापेप्टाइड ऐसे करके भी इसका क्लासिफिकेशन करा गया है। लेकिन मैं तो जनरल वे में बता रहा हूँ। तो देखो पेप्टाइड्स इन नेचर मतलब प्रोटीनेशियस भी इसके अंदर बोलेंगे, तो इसका हो गया क्या स्टूडेंट्स? बोलो। इसका हो गया एक इंसुलिन। सो इन दिस केस इसका जो रिसेप्टर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, राइट। और ज़्यादातर केस में ये प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में फ्री होता है, राइट, फ्री होता है। और ये इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरली होता है वो CMP होता है, कैल्शियम होता है, IP3 होता है, और एंजाइम एक्टिवेशन बाय द रिसेप्टर कॉल्ड जैक। ओके। And steroid and thyroid another class, steroid and thyroid, right। इसके अंदर पेप्टाइड्स एंड कैटेकोलामाइन ये लगभग सेम वे में इसका जो सिग्नलिंग भी होता है। लेकिन आगे स्टेरॉयड्स एंड थायराइड, स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स, राइट। सो लेकिन ये मेम्ब्रेन में प्लाज्मा में ये फ्री नहीं होता, ये प्रोटीन बाउंड होता है, राइट। और इसका जो रिसेप्टर होगा वो इंट्रासेलुलर, इसका जो रिसेप्टर होगा वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। और मोस्ट कॉमन सिग्नलिंग मैकेनिज्म इसका जो होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर डायरेक्टली दे ऑल्टर द जीन ट्रांसक्रिप्शन, ओके। एंड उसका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है ये भी बहुत स्लो, धीमा जाता है, राइट, ये भी बहुत स्लो जाता है। सो these are the general types of hormone, okay। सो अगर तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग एक एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके बारे में डिटेल, जो उसका एनाटॉमी है एज वेल एज द सिक्रेशन है एंड द फंक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एज वेल एज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ओके। तो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे जो कैसे होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो फिर देखते हैं फर्स्ट जो होता है हमारा। सो अगर हमारा जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, देखो नेक्स्ट। सो द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर hypothalamus, pituitary gland, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, testes and ovaries, राइट स्टूडेंट्स। सो पहले जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, राइट, हाइपोथैलेमस। ये किसका पार्ट है हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? मिड ब्रेन, राइट, फोर ब्रेन का ये पार्ट है। सो एंड appeared as the floor of diencephalon। सो इसमें जो होता है बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है, बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है। उसको बोलता है क्या? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर। एंड दे प्रोड्यूस हार्मोन्स, ओके स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है, उसको बोलता है क्या? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर। जो सेल का न्यूक्लियर वो नहीं है, वो जो पर्टिकुलर सेल्स होता है उसको ही बोलता है क्या? न्यूक्लियर। और ये जो हार्मोन इससे सीक्रेट होता है
ये जो हार्मोन इसे सीक्रेट होता है, ये दो टाइप का हार्मोन होता है जनरली, टू टाइप्स. वन इज रिलीजिंग हार्मोन्स and other is inhibiting hormone. One is releasing hormone and other is inhibiting hormones. Okay students, तो रिलीजिंग हार्मोन अगर देखा जाए तो वो क्या है? तो रिलीजिंग मतलब वो हेल्प करेगा, राइट? मतलब वो रिलीज करने में हेल्प करेगा. तो ये क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट the secretion of pituitary hormones. और you know that students, pituitary को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ, ये है pituitary को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, राइट? अगर मास्टर कोई कंट्रोल कोई और कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. So hypothalamus is also called master of master gland. ओके, क्योंकि हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? मास्टर ग्लैंड. और इस पिट्यूटरी को क्यों मास्टर ग्लैंड बोलेंगे? क्योंकि पिट्यूटरी से इतना हार्मोन्स रिलीज होता है, वो और भी जो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल है, राइट स्टूडेंट्स? सो अगर मास्टर ग्लैंड को ही कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसको बोलेंगे क्या? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड. ओके, सो another thing that inhibiting hormones, what are the function of the inhibiting role? It inhibits secretion of pituitary hormones. सो ये क्या हुआ? एक बार बोल रहे हैं क्या वो स्टिमुलेट कर रहा है, एक बार इनहिबिट. तो ये एक फीडबैक वे में चल रहा था प्रोसेस, फीडबैक वे में चलेगा. क्या है ये फीडबैक? ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या स्टूडेंट्स? हाइपोथैलेमस, और इसमें होता है क्या? पिट्यूटरी. तो ये पूरा का पूरा इसका जो रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन इसके ऊपर काम करेगा. कैसे काम करेगा? अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तब ये इनहिबिटिंग सिक्रेशन होगा, वो इसको अपोज करेगा. ओके, बॉडी में ज़्यादा मात्रा में तो ये नहीं रिलीज हो सकता है ना, तो उसका एक खुद ही होमियोस्टेसिस है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस फीडबैक वे में चलता है. Sometimes this type of feedbacks are called positive feedback and sometimes they are known as negative feedback, right students? And hormones they reach pituitary gland through portal circulatory system. Okay, and regulate the function of the anterior pituitary. Hormones they reached pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होता है? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के तो क्या होगा तब? कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट, रिमेंबर दैट पॉइंट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी is under the direct neural regulation of the hypothalamus, right students?
सो देखो, सो ये दो पॉइंट है कि एंटेरियर पिट्यूटरी के साथ क्या हो रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या हो रहा है, राइट। अब हम देखेंगे इसका जो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन वो कैसे इसका क्या क्या नाम है और कैसे ये काम करते हैं, राइट। तो देखेंगे पहले रिलीजिंग हार्मोन। सर पिछला एक बार देखा। देखो ठीक है। सो पहले हो जाए, देखो TSH रिलीजिंग हार्मोन, TSH रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है बोलो? जो TSH हार्मोन है उसको क्या करेगा? रिलीज स्टिमुलेट करने कर। में हेल्प करेगा, राइट। ACTH रिलीजिंग हार्मोन, ACTH and beta endorphin secretion, राइट। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसमें दो फैक्टर होता है, वन इज FSH रिलीजिंग फैक्टर एंड अनदर इज LH releasing factor, and you can say another this is called the prolactin releasing and inhibiting factor. Prolactin releasing and inhibiting factor. ओके, सो इससे क्या क्या रिलीज होता है, जैसे कि FSH फैक्टर से LH से, और जो इन प्रोलेक्टिन रिलीजिंग फैक्टर है वो प्रोलेक्टिन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, और इनहिबिटिंग फैक्टर से इनहिबिट होगा उसका सीक्रेशन। ओके, देन जैसे एक और आता है क्या? GHRH, सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एंड एज वेल एज GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट। एंड इसको ही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इसको ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? स्टेज सोमाटोस्टैटिक, राइट। सो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से क्या रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन, राइट। और यहाँ पे इनहिबिशन हो रहा है उसका, तो रिलीज नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? MSH RH और MSH इनहिबिटिंग। MSH मतलब क्या होता है? मेलानोसाइट stimulating स्टिमुलेटिंग, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। तो इससे उसका रिलीज होगा MSH का। Okay, so these are the different types of releasing and inhibiting hormone of the hypothalamus. Okay. So note down these different points. And now, if you look at the structure of the hypothalamus as well as the pituitary and their connection, okay. So देखो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसका जो पोर्टल सिस्टम अभी भी बोला, तो पोर्टल सिस्टम में वो कैसे वे में जाता है। ओके, सो आई एम ड्राइंग दिस फिगर एक्चुअली। तो जनरली क्या बोला कि हाइपोथैलेमस से जो रिलीज हो रहा है उसमें कौन सा रीजन से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस में कौन सा एक पर्टिकुलर टाइप का सेल बोला है उसमें? हाइपोथैलेमिक।
Yes, nuclei. Nuclear secretory cell. These are different. These are not the cellular nuclei. Okay, these are the hormone secreting cells. And two different point. One is क्या है, इसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो कैसे उसका उसके साथ उसका कनेक्शन है, एज वेल एज द पोस्टीरियर रीजन. इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं. ओके, सो ये क्या है, हाइपोथैलेमस का पोर्शन है, राइट स्टूडेंट्स. हाइपोथैलेमस, अंडरस्टूड. इसका पोस्टीरियर पार्ट, इसमें ये साइड जो है पोस्टीरियर, इसमें होता है एंटीरियर पोर्शन. ये होता है मैमिलरी बॉडी. और ये है ऑप्टिक कायस्मा. क्या है ये, ऑप्टिक कायस्मा, राइट. तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अलग अलग जगह से यहाँ पे कनेक्शन होता है. ये जो रीजन है इसका नाम है मेडियन एमिनेंस. मेडियन एमिनेंस, राइट. और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग सा कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये है आर्टरी. क्या है ये, आर्टरी. देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये क्या है, प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस. और ये जो है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल वेसल. And these are the sinuses. Okay, anterior pituitary gland. ये जो रीजन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये होता है, ये अलग से मैं कलर किया हूँ, ये है वेन. सो these are the this is the route from hypothalamus to anterior pituitary. Better say the vascular route. Okay, vascular route. समझ में आया कि नहीं, बोलो स्टूडेंट्स. समझ में आया कि नहीं. अरे हाँ और ना में तो बोलो कुछ. ये ड्रॉ कर रहा हूँ अभी.
और दो इम्पोर्टेंट टाइप का इसमें जो न्यूक्लियस का इसमें है नाम, वो है एक सुप्राऑप्टिक and another one is a paraventricular. Supraoptic nuclei and the paraventricular nuclei. ड्रग हुआ स्टूडेंट्स, बोल दो होने पे, ओके। So the hypothalamic hormones, they are secreted by neurons, okay, but enter the anterior pituitary through the vessel. Remember that statement. Hypothalamic hormones, they are secreted by neurons but enter the anterior pituitary through blood vessels. Within the infundibulum is it is a bridge of capillaries that connects the hypothalamus to the anterior pituitary, okay, and the network is now called hypophyseal portal system. It allows the hypothalamic hormones to be transported to the anterior pituitary and without the first entering the systemic circulation. The system originates from the superior hypophyseal artery and which branches of the carotid arteries and transport blood to the hypothalamus. The branches of the superior hypophyseal artery from the hypophyseal portal system, okay, so hypothalamic releasing and inhibiting hormones travel through a primary capillary plexus to the portal veins and which carry them into the anterior pituitary, okay. But hormone produced by the anterior pituitary in response to the releasing hormone enters secondary capillary plexus and from there drain into the circulation, okay. I think it is okay with you, right? देखो समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। हुआ कि नहीं कशिश, हो गया कि नहीं, बोलो। यस सर, पर जो आपने लाइन दी वो लिख पाई। ओके, डोंट वरी, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल शेयर यू द मटेरियल। नाउ एक और फिगर देखो, ये अच्छे से देखो, ठीक है। मैं इसका जो रिकॉर्डिंग है शेयर कर दूंगा, ओके।
ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का कुछ पोर्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें जो लास्ट पार्ट दिखाया था एंटीरियर पिट्यूटरी, तो उसमें देखो, तो यह इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैपिलरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कैपिलरी। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ब्लड फ्लो। ओके, तो इसमें भी एज वेल एज इसमें भी, और अंदर क्या होता है, तो देखो इसमें ये क्या है, ये तो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सेल्स, मतलब यू नो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने अलग अलग टाइप का यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होता है, राइट। और वो हार्मोन सिक्रेशन इसमें भी अलग अलग जो सेल्स है, एक पर्टिकुलर टाइप का सेल, जैसे कि मान लो यहाँ पे होता है कॉर्टिकोट्रॉप, तो कॉर्टिकोट्रॉप से क्या रिलीज होगा स्टूडेंट्स, कॉर्टिकोट्रॉप से एसिटेज। यस, वैसे ही हो जाता है मेमोट्रॉप, ठीक है, थायरोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप, ये अलग अलग जो सेल है, अलग अलग सेल से अलग अलग उसका स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, जून 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 ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हुआ है देखो, ये इसका सीक्रेशन, अलग अलग सीक्रेटरी प्रोडक्ट है इसमें, और वो जाकर के इसमें मिल रहा है, इसमें ब्लड स्ट्रीम में, राइट, ब्लड स्ट्रीम में ये जाकर मिल रहा है। तो ये हार्मोन ये जो पार्ट है, ये हार्मोन्स दे आर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, राइट, दे आर कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये जो हार्मोन्स है, ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है, देन ये सेल को सीक्रेट स्टिमुलेट कर रहा है, रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन उसमें स्टिमुलेट करने के बाद वो जो सीक्रेशन होगा सेल का, वो फिर ये पे सर्कुलेशन में ये इधर आ रहा है। ओके, देखो समझ में आया कि नहीं। बोलो स्टूडेंट्स, समझ में आया कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अनिष्ठा समझ में आया कि नहीं। यस सर।
ये क्या है? पर्स इंटरमीडिया। ये दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, राइट? एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका दो रीजन है। तो हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइपो, हाइपोफाइसिस। यस। सो इसका जो दो रीजन है, एक है एडेनो हाइपोफाइसिस, और एक है क्या? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एक है एडेनो हाइपोफाइसिस, एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ओके? द पिट्यूटरी ग्लैंड किधर रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी। बोनी कैविटी जिसका नाम क्या है? सेला टर्सिका। सेल्ला टर्सिका, सेल्ला टर्सिका, okay? So, and it is also attached to the floor of diencephalon or forebrain through a stalk, right? So pituitary का जो है लोकेशन सेल्ला टर्सिका, एंड the division, it is divided into two parts. One is adenohypophysis, another is neurohypophysis, okay? और pituitary को बोलते हैं क्या? Hypophysis, right students? So another thing, adenohypophysis, it is divided into three parts. It is divided into three parts. वो पार्ट क्या क्या है? इस पार्ट में है पर्स डिस्टालिस, इस पार्ट में है पर्स डिस्टालिस। सेकेंड जो पार्ट है वो होता है पर्स ट्यूबरलिस, पर्स ट्यूबरलिस, एंड पर्स इंटरमीडिया, पर्स इंटरमीडिया, ओके? और न्यूरोहाइपोफाइसिस का दो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तीन ही बोल सकते हो क्या? एक है पर्स नर्वोसा, median eminence and infundibular stalk, okay? And pars nervosa, it is also known as posterior pituitary, okay? It is also known as posterior pituitary. चलो फिर देखते हैं कौन कौन सा पिट्यूटरी से क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है, ओके स्टूडेंट्स? सो अगर देखा गया ये पोस्टीरियर रीजन, मिडिल रीजन एंड द ये posterior region, middle region and the anterior region. So different hormones are secreted from the this different part of pituitary, okay? अगर देखा जाए तो anterior pituitary से क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है? FSH, right? LH, then ACTH, then TSH, then GTH, GH और STH, उसको ही बोलते हैं क्या? STH। देन उसका एक और होता है क्या स्टूडेंट्स? प्रोलैक्टिन, राइट? और मिडिल लोब से क्या होता है स्टूडेंट्स? मिडिल लोब से MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके? और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, oxytocin, ADH। यस, ओके? सो इसका जो डिफरेंट फंक्शन है एंड द डिसऑर्डर है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो
यहाँ पर जो मैं दिखाने वाला था देखो, तो इस रीजन में अलग अलग सेल है, ठीक है, अलग अलग सेल है, और वो सेल से अलग अलग हार्मोन रिलीज होता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस स्लाइड में देखो, इतना प्रोमिनेंट वे में नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा जस्ट देखो। एक टाइप का सेल है जिसमें ये बोलता है बेसोफिल सेल, बेसोफिल सेल्स, ठीक है। बेसोफिल, बेस को स्टैंड कर रहा है, बेसोफिल डेल्टा सेल बोलता है, और बोलता है डेल्टा सेल, बेसोफिल सेल और डेल्टा सेल। एक और टाइप का सेल होता है बीटा सेल्स, ओके, तो सेल होता है बीटा सेल। मैं स्टेनिंग, जो स्टेनिंग करने के बाद जो कलर जैसा दिखता है, मैं वैसे ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पे थोड़ा सा रेडिश और ब्रिक रेड टाइप कलर ये पे आ जाता है। इसको बोलते हैं एप्साइलॉन सेल और एसिडोफिल सेल, एप्सिलॉन सेल और एसिडोफिल सेल। ऐसे भी इधर भी देख सकते हो, इधर जो सेल है, सेलुलर टाइप्स डिफरेंट, they are called the gamma cells, gamma cell, okay. So these are the different type of cells. So draw this figure, draw this schematic figure.
हो गया स्टूडेंट्स? पियासा हो गया कि नहीं?